Good morning, students. So, students, once again, I am Sharad Sharma, and today I will tell you about the factor theorem. Factor theorem. This is a topic of the class 9th. Class 9th में factor theorem we will discuss today. Factor theorem. Factor theorem of polynomial. Chapter 2. Polynomial. Correct. In our previous video, we have discussed about the remainder theorem. Okay, students. So, remainder theorem, what it is? Remainder theorem, just remind to you, let Px be a polynomial, Px be a polynomial of degree n greater than or equal to 1. If Px, this polynomial, is divided by a linear polynomial x minus a linear polynomial x minus a, then remainder is equal to pa. करेक्ट. क्या समझ में आता है इसमें? इससे समझ में ये आता है हमारे कि इफ़ वी हैव द वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 or equal to 1 is divided by the x minus, then remainder is pa. Means px is divided by x minus a. This is qx, quotient. Then remainder means r is equal to, we will get pa. Means put x is equal to a in px. x की जगह a हम इसमें पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो वी विल गेट द pa. So this is the remainder theorem we have discussed in the previous video. Today we will discuss the factor theorem. Factor theorem, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वी विल यूज इट. ये इसका जो है आपके माइंड में रहना चाहिए दोनों थ्योरम. ये फैक्टर थ्योरम, व्हाट इट इज. फैक्टर थ्योरम, लेट, इसका स्टेटमेंट आई एम राइटिंग, लेट px बी ए polynomial. Px, polynomial in variable x. Let Px be a polynomial of degree n greater than and equal to 1, and let a belongs to R, means a be a real number. Then there is a two condition. First condition, if pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. Second condition, if इसकी converse, reverse, if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. This is the statement of the factor theorem. Once again, listen. Let px be a polynomial. px कोई एक polynomial है, डिग्री n greater than and equal to 1, and let a belongs to R. Then first condition, if pa is equal to 0, means remainder. pa means what is a p? pa, according to the remainder theorem, pa is remainder. If pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. अगर रिमाइंडर 0 होता है, इट मीन्स जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0. इसको आप अगर पॉलिनोमियल से हटके नॉर्मल आप देखें, 15 इज ए नंबर. 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 5. 3 इंटू 5 15 प्लस 0. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 3 5 जा 15, r इज इक्वल टू 0. 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स r. इफ r इज इक्वल टू 0, देन 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, एंड सिमिलरली 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 15. करेक्ट. तो ऐसे ही इफ p इज इक्वल टू 0, a
then x minus a is a factor of px. If x minus a is a factor of px, then p is equal to 0. This is the simple factor theorem. इसका proof I will tell you about the proof, but first we will do the question. Question से आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी. So now questions मैं आपको इसका कहता हूँ एग्जाम में कैसे आएगा. Show that I am taking the one example, x minus 3 is a factor of the polynomial fx is equal to x cube plus x square minus 17x plus 15. Show that x minus 3 is a factor of the polynomial. If x minus 3 is a factor, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0. मैं आपसे कहता हूँ इसको आप ज़रा एक नॉर्मल पॉलिनोमियल सेट के देखो. मैं कहता हूँ 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15. कैसे हुआ? 3 को 15 से डिवाइड करूँगा, सो व्हाट वी विल गेट मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0. 3 15 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आया 0. मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मीन्स x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब देखो x माइनस 3 व्हाट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a. फैक्टर थ्योरम क्या है? x माइनस a. तो यहाँ से हम a की वैल्यू पॉइंट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन बाय द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट यू शुड रिमेंबर, x minus 3 will be a factor of fx. This fx if f3 means remainder. f3 क्या हो गया? Remainder will be 0. So now x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 3 आ गई. नाउ पुट दिस इज द फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट. क्या हो जाएगा? f3. यहाँ पॉलिनोमियल को इसने f से रिप्रेजेंट कर रहा है, p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g से भी कर सकते हैं. f3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15. 3 क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 17 3 जा 51 प्लस 15. नाउ दिस इज प्लस दिस इज प्लस दिस इज प्लस दिस इज 51. तीनों को ऐड करेंगे 51 माइनस 51 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स f3 व्हाट इट इज? f3 मीन्स रिमाइंडर. सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर is equal to 0, hence x minus 3 is a factor of fx. Very simple. अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आपकी एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज दिस इज द एक्सरसाइज 2.4. Exercise 2.4. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. First part, x cube plus x square plus x plus 1. अब देखो, this is the polynomial of degree 3. ठीक है? It means px. अब now we have to show that x plus 1 is a factor. If x plus 1 is a factor, then remainder should be 0. It means कि now I will do the question. Question number first, exercise 2.4. Px is equal to x cube plus x square plus x plus 1. Okay. Now
by factor theorem x plus 1 is a factor of px, then factor होगा तो then remainder should be 0. तो how we get the remainder? Find the value of x. X plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. It means p minus 1 is equal to 0. ये आपका आना चाहिए. That should be come. So now put x is equal to minus 1 in px. इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इन इक्वेशन फर्स्ट कर लो. सो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स p माइनस 1 इज इक्वल टू 0. p माइनस 1 कहाँ से आया? माइनस 1 यहाँ से आया. इट मीन्स remainder is 0, then x plus 1 is a factor of px. Very simple. Question is done. Similarly, you can do the all questions 2.4. Now, next question. Question number, one more question is very important. Again, I am telling you, that is the question number 3. This is the question number 3. Read. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. वैल्यू फाइंड करनी है हमें k की. x माइनस 1 फैक्टर है इस px का. इफ x माइनस 1 फैक्टर है इसका, इट मीन्स कि इसको सेटिस्फाई करे. इट मीन्स द रिमाइंडर शुड बी 0. तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करके देंगे इसमें. अभी बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज px is equal to x square plus x plus k. Correct? Now, x minus 1 is a factor of px. ठीक है. This is given. ये given है. Since x minus 1 is a factor of px means x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. It means p1 is equal to 0. रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. देन रिमाइंडर, हाउ वी विल गेट द रिमाइंडर? प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करा था. x माइनस 1 p1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर इसका फैक्टर है तो. नाउ p1, px पता है, p1 निकाल लो. x की जगह 1 पुट कर दो. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k is equal to 0. 1 plus 1 plus k is equal to 0. 2 plus k is equal to 0. k is equal to 2 transpose minus 2. k की वैल्यू minus 2. This is your answer. Again, see in this question what he is saying. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px. If x minus 1 is a factor of px, then the remainder should be 0. Now, question number 4, simple. Factorize 12x square minus 7x plus 1. In our 8th class we have done it. Now question number 5. ठीक है. So this is the factor theorem and try the question number 5. Question number 5 एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ by hit and trial method factorization. देखो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. इसको मुझे फैक्टराइज करना है. कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 3 डिग्री पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, मैक्सिमम पावर. सो दिस इज द 3 डिग्री पॉलिनोमियल. नाउ हाउ वी विल सॉल्व? फर्स्ट इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द 2 डिग्री पॉलिनोमियल. सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज 120. कांस्टेंट टर्म इज 120. 120 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं. कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं 120 के? बेसिकली -1 1, -2 2,
-3 3 सेवरल पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। सो बाई ट्रायल पुट x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट px इसको ले लेंगे, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120। करेक्ट, px ले लिया हमने इसको। पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। जस्ट ट्रायल करके देख रहा हूँ मैं। p1 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 23 ये हो गया आपका माइनस 143 प्लस 143 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर p1 इज इक्वल टू 0 मीन्स remainder is 0 is what is the factor theorem states? Factor theorem states if PA is equal to 0 then x minus a is a factor of px। यही तो है। यहाँ देखो PA a की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो P1 is equal to 0 then x minus 1 is a factor of px। It means इसका एक फैक्टर हमें मिल गया दैट इज x माइनस 1। नाउ अब एक फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब आप निकाल लो इसको सिंपल। अब हम करेंगे इस मेथड से एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 एक्स स्क्वायर। डिवीज़न करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स। नाउ माइनस 22 एक्स माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 22 एक्स प्लस माइनस हट गया 120x माइनस 120 प्लस 120x माइनस 120 0। रिमाइंडर 0 आना ही था क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर। नाउ x माइनस 1 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस, यही तो होता है। दिस डिविडेंड इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस 0, यही तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिस मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 22x प्लस 120 प्लस 0, नीचे रिमाइंडर 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इज इक्वल टू दिस हो गया, तो फैक्टर हुए हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 8th क्लास वी हैव डन। 120 के ऐसे फैक्टर 22 आ जाए 10 एंड 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10x प्लस 120 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया इसमें x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12 बोथ ब्रैकेट सेम x माइनस 1 in one bracket x minus 12 another bracket x minus 10। so we have the 3 factor और 3 फैक्टर ही आने थे क्योंकि डिग्री कितनी है 3, तो इसके 3 फैक्टर होंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स x माइनस 1 x माइनस 12 x माइनस 10। इनमें से कुछ भी आप रख लेना x की जगह, p1 निकाल लो, p12 निकाल लो, p10 निकाल लो, सबकी रिमाइंडर 0 ही आना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम ऐसे करेंगे, NCERT में लिखा है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। सो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, देन
वी विल, और उसके लिए व्हाट वी विल डू बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. यू कैन पुट 1, -1, 2, -2 फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट. एनी फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट यू कैन पुट. मे बी पॉसिबल कि 2 रखने पे ना आए, -2 रखने पे हो सकता है 0 आ जाए रिमाइंडर. सो इस अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन सॉल्व इट. सो फैक्टर थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Your statement, the factor theorem, you should always remember the factor theorem statement. Once again I am just reminding to you. Let very simple मैं आपको बताता हूँ हिंदी में. px अगर एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इसमें 2 कंडीशन है. इफ़ pa इज इक्वल टू 0, इफ़ pa इज इक्वल टू 0, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px. इसका कन्वर्स कर दो, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0. वेरी सिंपल. अगर x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. सो दिस इज द फैक्टर थ्योरम. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड इफ़ you have any problem, then you can call me, and please see my video again and again. Okay, thank you very much.